Hello everyone, welcome to my channel all about fashion. In today's video, we will discuss cover Varanasi brocade. This is the part 2 or episode 2 of Indian textile series. In part 1, I have covered chikankari. I will add the link in the description box so that you can check it out directly. So in this video, I have tried to cover everything related to Varanasi brocade, like the origin of brocade work, how the process, the design process goes, how they start their work process and everything, the making process as well. And in the last, I have added some reference picture of product as well, like lehenga, saris and everything, so that it would make easier for you to understand how brocade work looks. So what are we waiting for? Let's get started with the video. What is brocade? Brocade is a type of fabric that is characterized by its raised designs and patterns woven into the fabric using a supplementary weft techniques. ब्रोकेड एक फैब्रिक का टाइप है जिसकी विशेषता उसकी उठी हुई डिज़ाइन और पैटर्न से पता चलती है। इसको बनाने के लिए सप्लीमेंट्री वेफ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन मेड फ्रॉम सिल्क ऑल्दो इट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल और अदर फाइबर्स। इसकी मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादातर सिल्क के धागे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिंथेटिक मटेरियल का भी फाइबर्स का भी यूज़ किया जाता है। Brocade is commonly used in traditional clothing, particularly for formal or ceremonial attire, as well as in home decor such as upholstery and drapery. Brocade fabric का यूज़ मोस्टली ज़्यादातर ट्रेडिशनल अटायर के लिए किया जाता है और होम डेकोर के लिए भी किया जाता है, जैसे कि अपहोस्ट्री और ड्रेपरी के लिए। इट इज़ नोन फॉर इट्स लग्जीरियस एंड एलिगेंट अपीयरेंस एंड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद हाई एंड फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइन। ये अपनी लग्जीरियस अपीयरेंस और एलिगेंट के लिए जाना जाता है और ये मोस्टली हाई एंड फैशन और इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। Here are some reference picture of brocade fabric for you to make it more easier to understand how it exactly looks. Origin of Varanasi brocade. According to historical records, the production of brocade in Varanasi can be traced back to the Vedic period. Historical record के according जो वाराणसी brocade work है उसके trace या उसकी शुरुआत वैदिक period से हुई थी. The city was an important center of silk weaving during the Gupta period 320 to 550 CE, and its textiles were renowned for their fine quality and intricate designs. वाराणसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था सिल्क वीविंग का गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जो कि 320 से 350 सीई तक था। ये अपनी इंट्रिकेट डिज़ाइन और फाइन क्वालिटी के लिए जाना जाता था। ड्यूरिंग द मुगल इरा 1526 to 1858, Varanasi became a major center of brocade production and the art of weaving intricate design into fabric reached new heights. मुगल्स के इरा के टाइम पे जो वाराणसी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर बन गया ब्रोकेड फैब्रिक के प्रोडक्शन का। इनकी डिज़ाइंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और जो इनकी डिज़ाइंस थी वो एक नई हाइट्स और नई ऊंचाइयों तक पहुंची। लोगों ने बहुत अच्छे से जाना इसके बारे में। द मुगल्स वर नोन फॉर their love of luxury and fine textile, and they patronized the weaving industry in Varanasi, leading to the development of new and innovative designs. मुगल्स अपनी लग्जरी और जो उनकी फ़ाइन टेक्सटाइल की तरफ रुझाव था उसके लिए जाने जाते हैं। इनके टाइम पे इन्होंने जो वीविंग इंडस्ट्री है उसको काफ़ी डेवलपमेंट्स किए और काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन पैटर्न्स और डिज़ाइंस स्टार्ट किए। एंड नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ बनारसी ब्रोकेड। स्टेप फर्स्ट, डिज़ाइन. The first step is the design process, where the master weaver creates a design or pattern on graph paper. The design is then transferred to punch cards, which are used to control the jacquard loom. बनारसी ब्रोकेड बनाने का सबसे पहला स्टेप है डिज़ाइन। इस स्टेप में जो मास्टर वीवर्स होते हैं वो डिज़ाइन को पैटर्न और ग्राफ पेपर पर क्रिएट करते हैं। उसके बाद उस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र किया जाता है पंच कार्ड्स पे और इस पंच कार्ड के हेल्प से ही जो जकार्ड लूम है उसको कंट्रोल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। स्टेप 2, प्रिपरेशन ऑफ वॉप एंड वेफ्ट. द वॉप थ्रेड्स which runs vertically on the loom are prepared by stretching them on a frame and winding them into bobbins. The weft threads which run horizontally are prepared by winding them onto small bobbins called prints. सेकेंड स्टेप में जो वॉप थ्रेड्स होते हैं जो कि वर्टिकली रन किए जाते हैं लूम में, उनको प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रेचिंग की हेल्प से फ्रेम वाइंडिंग में बॉबिन्स पे
उसके बाद जो वेब थ्रेड्स होते हैं उनको हॉरिजेंटली रन किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग देम ऑन टू स्मॉल बॉबिन्स, उनको स्मॉल बॉबिन से बाइंड करके, जिनको हम प्रिंट्स कहते हैं। स्टेप थर्ड, वीविंग। द वीविंग सेट्स of the loom, which is complex machine that allow the warp and weft thread to interlace. The punch cards are loaded onto the loom, which then follows the pattern to create the design. Step थर्ड से वीविंग की प्रोसेस शुरू की जाती है। ये सबसे पहला स्टेप है फैब्रिक रेडी करने का। इसमें वीवर्स जो है वो लूम को प्रिपेयर करते हैं, वॉप एंड वेव थ्रेड को लूम में इंटरलेसिंग करते हैं। उसके बाद पंच कार्ड लोड किया जाता है लूम पे, जैसी भी डिज़ाइन हो, डिज़ायर्ड डिज़ाइन या पैटर्न जैसा भी चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग। स्टेप फोर, जरी वर्क। द वाराणसी ब्रोकेड इज टिपिकली एम्बेलिश्ड विद जरी वर्क, which is the art of weaving fine metallic threads into the fabric. The zari threads are wound onto bobbins and passed through the weft threads at regular intervals to create the desired pattern. जो वाराणसी ब्रोकेड है वो टिपिकली एम्बेलिश्ड होता है थ्रू जरी वर्क से। जो जरी थ्रेड्स होते हैं उनको बॉबिन्स के ऊपर लपेटा जाता है और फिर पास किया जाता है वेव थ्रेड से रेगुलर इंटरवल पे डिज़ायर्ड डिज़ाइन या पैटर्न के अकॉर्डिंग। स्टेप फिफ्थ, फिनिशिंग। Once the weaving is complete, the fabric is carefully inspected and any flaws or irregularities are corrected. The fabric is then washed and treated with starch to give it body and stiffness. स्टेप 5 में फिनिशिंग की जाती है। वीविंग कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक कंप्लीटली और केयरफुली पूरी तरीके से चेक किया जाता है और अगर कोई भी इरेगुलरिटीज़ या फ्लॉज होते हैं तो उनको करेक्ट किया जाता है इस स्टेप में। उसके बाद फैब्रिक को वॉश किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है उसके साथ निकाला जाता है और बॉडी को स्टिफनेस और एक अच्छा लुक देने के लिए। स्टेप 6, कटिंग एंड स्टिचिंग। द वाराणसी ब्रोकेड इज देन कट एंड स्टिच्ड into various garment or home decor items according to the desired design. स्टेप 6 में कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। आप जो भी प्रोडक्ट है, साड़ी है, सूट है, उसके अकॉर्डिंग या कोई होम डेकोर का प्रोडक्ट है, स्टेप 6 में ये स्टेप कंप्लीट किया जाता है कटिंग और स्टिचिंग का। Overall, the making process of Banarsi brocade is a highly skilled and labor-intensive process that requires patience, precision, and attention to detail. It is a traditional art form that has been passed down through generations of weavers in Varanasi, India, and continues to be highly valued and respected around the world. ओवरऑल जो बनारसी ब्रोकेड है उसकी जो भी मेकिंग प्रोसेस है, डिज़ाइन प्रोसेस है, वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है और बहुत ही पेशेंस इसके लिए चाहिए होती है इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इसमें डिटेल्ड वर्क किया जाता है इसलिए। और ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो आज भी वाराणसी में जनरेशन बाई जनरेशन चलती आ रही है अच्छे से, और ये काफ़ी रिस्पेक्टेड क्राफ्ट है इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड। एंड नाउ द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ बनारसी ब्रोकेड। स्टेप 1, इंस्पिरेशन। The first step is to find inspiration for the design. This can come from a variety of sources including traditional pattern and motifs, natural elements like flowers or birds, or contemporary trends. बनारसी ब्रोकेड की जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसका पहला स्टेप होता है डिज़ाइन की इंस्पिरेशन ढूंढना, और वो इंस्पिरेशन किसी भी तरीके से करी जा सकती है, मिल सकती है या बनाई जा सकती है, जो ट्रेडिशनल हमारे पैटर्न होते हैं उससे, या जो नेचुरल हमारे हैबिटेट है, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं उनसे, या फिर कोई भी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड जो सीज़न में चल रहा है। स्टेप 2, स्केचिंग। द डिज़ाइनर क्रिएट अ स्केच ऑफ द डिज़ाइन ऑन पेपर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिज़ायर्ड साइज, शेप एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स। जो सेकेंड स्टेप है वो है स्केचिंग। इसमें जो डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन को पेपर पे डेवलप किया जाता है, उसकी शेप, साइज़ और जो भी ओवरऑल एस्थेटिक होगा डिज़ाइन का उसको माइंड में रखते हुए। स्टेप 3, डिजिटाइजेशन। द स्केच इज़ देन डिजिटाइज्ड यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर विच अलाउज द डिज़ाइनर टू रिफाइन द डिज़ाइन एंड क्रिएट अ डिटेल्ड पैटर्न। स्टेप 3 में जो डिज़ाइन है उसको डिजिटलाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। इसमें डिज़ाइनर जो भी चेंजेस हैं या कुछ और एड ऑन है सॉफ्टवेयर पे वो करता है और एक डिटेल्ड डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। Step 4, punching. The pattern is then transformed to punch cards, which are used to control the jacquard loom. The designer must carefully determine the sequence of threads and colors needed to create the desired pattern.
स्टेप 4 पंचिंग। इसमें जो पैटर्न होता है उसको पंच कार्ड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी हेल्प से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जकार्ड लूम को कंट्रोल किया जाता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। स्टेप 5 सैम्पलिंग। बिफोर द फाइनल बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड, अ स्मॉल sample is woven to test the design and make any necessary adjustments. स्टेप 5 है जो कि है सैम्पलिंग। इसमें फाइनल प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक टेस्ट सैम्पल बनाया जाता है, ताकि जैसी जो डिज़ाइन चाहिए होती है वो एग्जैक्ट इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं, उसको पहले से टेस्ट करने के लिए। स्टेप 5 वीविंग। Once the sample is approved, the full Banarsi brocade fabric is woven on the jacquard loom using the punch cards to control the pattern and colors. वीविंग। स्टेप 6 है जो कि है वीविंग। स्वच्छ सैम्पल अप्रूव होने के बाद फाइनल बनारसी ब्रोकेट फैब्रिक को बनाया जाता है जकार्ड लूम पे, जो कि पंच कार्ड और पूरी डिज़ाइन प्रोसेस के बाद वही सेम फॉलो करके सारा पैटर्न और कलर उसको बनाया जाता है। Seventh step, embellishment. After the weaving process, the Banarsi brocade fabric must be embellished with zari work or other decorative elements to enhance its beauty and value. वीविंग प्रोसेस के बाद इसमें जो भी एम्बेलिशमेंट का काम है जरी वर्क के थ्रू वो किया जाता है, इसके लुक को और ओवरऑल और अच्छे से डेकोरेटिव और इन्हांस करने के लिए। ओवरऑल द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ बनारसी ब्रोकेड इज़ हाईली स्किल एंड intricate process that requires a deep understanding of traditional technique and a keen eye for detail. It is true art form that has been owned over centuries by master weavers in Varanasi, India, UP. ओवरऑल जो बनारसी ब्रोकेड की डिज़ाइन प्रोसेस है वो बहुत ही हाई स्किल्ड है और बहुत ही इंट्रिकेट है, इसीलिए इसमें एक बहुत ही कीन आई और बहुत ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस को पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। बनारसी ब्रोकेड एक पुरानी और बहुत ही ऑनर्ड टेक्सटाइल है, क्राफ्ट है, वीविंग है, जो कि आज भी वीवर्स बना रहे हैं वाराणसी, इंडिया में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हुए। एंड नाउ some design details of Varanasi brocade. The design motifs of Varanasi brocades are often inspired by Mughal and Persian art and include a wide range of flower, geometric, and figurative patterns. Some of the most common motifs found in Varanasi brocade include: first one, booty, small floral or paisley motif that are woven all over the fabric. बूटी में स्मॉल जो होते हैं फूल बनाए जाते हैं और पेजली मोटिव्स बनाए जाते हैं, उनको वीव किया जाता है पूरे फैब्रिक पे। सेकेंड वन, अशरफी, अ डायमंड शेप्ड मोटिव इंस्पायर्ड बाय द मुगल करेंसी ऑफ द सेम नेम। एक डायमंड शेप मोटिव्स होते हैं जो कि मुगल करेंसी से अपनाए गए हैं, शुरू किए गए हैं। थर्ड वन, शिकरघर, अ पैटर्न ऑफ एनिमल हंटिंग और चेजिंग ईच अदर, ऑफन फीचरिंग एलिफेंट, टाइगर एंड डियर। इस पैटर्न में जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को हंटिंग कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, ऐसे फिगरेटिव मोटिव्स बनाए जाते हैं। इसमें एनिमल्स मोस्टली एलिफेंट, टाइगर्स और डियर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फोर्थ, अमरू, a pattern of mangoes often considered a symbol of good luck and prosperity. अमरू में जो मैंगो है उसके पैटर्न बनाए जाते हैं डिज़ाइन में, ऑल ओवर फैब्रिक में या कुछ मोटिव्स में, और इसको कंसिडर किया जाता है एज अ गुड लक और प्रॉस्पेरिटी। फिफ्थ, झालर, अ पैटर्न ऑफ हैंगिंग चेन्स और टैसल्स। झालर पैटर्न में हैंगिंग चेन्स होते हैं और टैसल्स होते हैं, उसको वीव किया जाता है, बनाया जाता है। बेल, a pattern of vines or cripples leaves often used as a border design. बेल में लीव्स, वाइन्स और उसको बनाते हुए डिज़ाइन किया जाता है, ये मोस्टली बॉर्डर पे बनाई जाती है इस तरीके की डिज़ाइन। जंगला, अ पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लोरल मोटिव्स ऑफन यूज एज अ बॉर्डर डिज़ाइन। जंगला में जो इंटरकनेक्टेड है फ्लोरल मोटिव्स को यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इसको बॉर्डर डिज़ाइन की तरीके से यूज़ किया जाता है। And now some Varanasi brocade product pictures.
थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार